हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल सॉल्यूशन। आज मैं आप सबको चैप्टर 5 बिना कुटीर जो कि सौरभ कुमार चालिहा ने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस स्टोरी में जो हमारा ऑथर है वह अपने दृष्टियों से हमें कहानी सुना रहा है, जहाँ कहानी एक समय में एक चरित्र द्वारा सुनाई जाती है। ये उन घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझकर बोल सकता है या उनका अपना अनुभव भी बता सकता है। Summary: narrated in first person. Bina Kutir is somewhat speculative account of man's search for a rented house in Guwahati. The narrative is presented through a series of imagined situations in the form of story. It begins with the narrator entering a neighborhood where there are a lot of concrete construction with some building at different stage of development. Narrated in first person, पहले व्यक्ति में वर्णित, मतलब एक समय में एक चरित्र द्वारा सुनाई जाने वाली स्टोरी। बिना कुटीर गुवाहाटी में एक व्यक्ति द्वारा किराए के घर की खोज का कुछ हद तक काल्पनिक विवरण है, जिसे कहानी के रूप में कल्पित स्थितियों के सीरीज माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस स्टोरी की शुरुआत नरेटर एक पड़ोस में प्रवेश करने से होता है, जहां बहुत सारे बिल्डिंग निर्माण है। कुछ बिल्डिंग विकास की विभिन्न स्टेज में है। In the course of his search for a home conducive to his requirement, he come upon a lone Assam-type house in the land. As all the other buildings are many-storied concrete structure, the Assam-type house stand out clearly. The house, which is unoccupied, has a Bina flower plant, on the basis of which the narrator speculates that the house is most likely called Bina Kutir. However, that is not the actual name of the house, yet for his own imaginative purpose, the narrator refers to it as Bina Kutir. The word Bina Kutir implies that the house is small in size and therefore seen as a cottage. यानी अपने रिक्वायर्ड के अनुसार घर की तलाश के दौरान उसे गली में एक अकेला आसाम टाइप घर मिलता है। उनको बड़े बड़े बिल्डिंग से ज़्यादा आसाम टाइप का घर स्पष्ट रूप से सामने आता है। जो घर खाली है उसी में एक बीना फूल का पौधा है, जिसके आधार पर नरेटर ने अनुमान लगाया है कि घर को शायद बीना कुटीर कहा जाता है। हालांकि वे घर का वास्तविक नाम नहीं है, फिर भी अपने कल्पनाशील उद्देश्य के लिए आर्थर इसे बिना कुटीर के रूप में मन ही मन सोच लेता है। कुटीर शब्द का तात्पर्य यह है कि घर आकार में छोटा है और इसीलिए इसे झोपड़ी के रूप में देखा जा सकता है। Not quite knowing how and where to gather information from, the narrator approaches a vendor shop facing the house and tries to elicit information from the young man sitting behind the counter. The young man does not have much information, but over the course of the conversation, the narrator discovers, but not with absolute certainty, that a small family used to live there. The head of the family was apparently a teacher of Sanskrit, and his two sons and daughter lived with him. The elder son went to become a teacher like his father, and the younger one pursued medical study in Dibrugarh. यानी उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे और कहाँ से जानकारी इकट्ठा करें। ऑथर ने घर के सामने एक वेंडर शॉप के पास जाते हैं और काउंटर के पीछे बैठे युवक से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। युवक के पास अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कि वह एक छोटा परिवार रहता था। परिवार का मुखिया जाहिर तौर पर संस्कृत का शिक्षक था और उसके दो बेटे और बेटी उसके साथ रहते थे। उसका बड़ा बेटा अपने पिता के तरह शिक्षक बन गया और उसका छोटा बेटे ने डिब्रूगढ़ में मेडिकल के पढ़ाई की। The daughter, who the narrator imagines is named Bina, got married eventually and not much was known about her present whereabouts. Interestingly, these speculations are part of the narrator's willful imagination, even though the information that he derives contribute to his assertment of the situation.
He concludes that this family represents a tradition of the old time which did not evaluate everything in commercial terms, which is why even after the passing away of the father, the children kept the house as it is, and this is perceived by the narrator to be a sign of good upbringing and lack of interest in commercial gain. He also visualizes that the second son's decision to go against the wishes of his father created a rift which perhaps remained unresolved. यानी जिस बेटी की कल्पना आर्थर ने की है उसका नाम बीना है। अंततः उसके शादी हो गई और उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि यह अंतकीन आर्थर के जानबूझकर की गई कल्पना का हिस्सा है। भले ही उसने जो जानकारी प्राप्त की है वह उसके मूल्यांकन में योगदान करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये परिवार पुराने समय से एक परंपरा का प्रतिध्वनि करता है जो हर चीज़ के दाम बढ़ने पर भी इस घर को नहीं बेचा। यही कारण है कि पिता के मृत्यु के बाद भी बच्चों ने घर को वैसे ही रखा है और आर्थर ने इसे अच्छी परवरिश लाभ में रुचि के कमी का संकेत माना है। उन्होंने ये भी कल्पना की कि दूसरे बेटे ने अपने पिता के इच्छाओं के खिलाफ जाने की फैसले ने एक दरार पैदा कर दी जो शायद अनसुलझी रह गई। However, when the author learned that his imagined image of the tradition-loving family who did not harbor any interest in profit was misplaced, he get lost in his imagination again. हालांकि जब आर्थर को पता चलता है कि एक परंपरा प्रेमी परिवार के उसके कल्पना की गई छवि जो लाभ में कोई रुचि नहीं रखता था वो गलत हो गई है तो वह फिर अपने कल्पना में खो जाते हैं। A close reading of the story provides a picture of life in Guwahati more than 5 decades ago, illustrating the gradual urbanization in different localities of the city. The story presents a narrative where the process of storytelling is combined with the narrator's fertile imagination. He brings to life a past on the basis of the information he received and adds his own visualization to create his version of the situation. यानी कहानी को करीब से पढ़ने पर 5 दशक के भी पहले गुवाहाटी के जीवन के तस्वीर मिलते हैं जो शहर के विभिन्न इलाकों में शहरीकरण को दर्शाते हैं। कहानी एक आख्यान प्रस्तुत करते हैं जहां कहानी के प्रक्रिया को नरेटर अपनी कल्पना के साथ जोड़ देता है। वे प्राप्त जानकारी के आधार पर अतीत को जीवंत करते हैं और स्थिति का अपना संस्करण बनाने के लिए अपना विजुअलाइजेशन का दृश्य जोड़ते हैं। तो यही हमारा बीना कुटीर का एक्सप्लेनेशन था और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। ठीक है, थैंक यू।